سڑک ہے نا، یہ جو آپ کو بلو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ اس کی لوکیشن آپ صرف دیکھ لیں کہ جو پیچھے آپ کو سکیسر نظر آ رہا ہے یہ سکیسر ہل اسٹیشن ہے. اور آپ اگر کوئی پاکستان آئے گا، میں نے پھر سے کہا ہے کہ یہ ہم سارا فوکس اوورسیز پاکستانی پہ ہے. وہ پیچھے آپ دیکھیں سکیسر ہے، یہ 40 منٹ دور ہے یہاں سے. اور ہاں سکیسر وہ سامنے پیچھے پہاڑ کا جو نظر آ رہا ہے. اور یہ جو سالٹ رینج ہے، یہ سالٹ رینج یہ سب کو پتا ہوگا پورٹوار کے اوپر، کیونکہ یہ بیکورڈ علاقہ تھا. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا، یہ کتنی بڑی دنیا کی جیولوجیکل کیا کہتے ہیں کہ ایک گولڈ مائن ہے. وہاں کہتے ہیں سب سے دنیا کی اینشنٹ فارمیشن ہے. یہ پھر سکیسر کا ایریا پیچھے، یہ پورٹوار اس کو کہتے ہیں. اور یہ یہاں پہ ڈیم ہے. آگے چلیں. یہ انگریزوں نے بنایا ہوا تھا، ریزروائر بنایا تھا. ادھر سے پانی جاتا ہے نیچے نیچے وہاں پہ میاں والی میں، اور سارا ریگستان تھا نا. اس ڈیم کی وجہ سے اس کو آباد کیا تھا. آگے چلیں. یہاں سلفر سپرنگز، اور یہاں پہ ہم ویلنس سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ٹورسٹ اٹریکشن ہو، نمل کی انکم جنریشن ہو. ہاں آگے چلیں. اچھا یہ اس وقت ہماری 3 بلڈنگز ہیں. یہ جو سر انور پرویز ریزیڈنسی ہے، یہ میں حفیظ بھائی کو بتاؤں گی کہ یہ ہمارا ہوٹل ہے. آپ سمجھیں ہم بھی ہوٹل بنا چکے ہیں. ایک چیز ہے. تو یہ اس کے 3 بلڈنگز ہیں. کرکٹ گراؤنڈ، آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ایک چیز بنانے کے لیے کترا کترا بن گئی. یہ صرف کرکٹ گراؤنڈ کو 3-4 کروڑ روپے لگے. ہاں یہ تو یہ پہلے آگے چلتے تھے. یہ پہلے والی جو بلڈنگ کھڑی ہے یہ ایک بلڈنگ تھی، پھر ہم نے ایک اور بلاک بنایا. اور یہ جو آپ چھوٹا سا قصبہ دیکھ رہے ہیں گاؤں والا، یہ چھوٹا سا، ہاں یہ چھوٹا سا، انہوں نے 10 سال 20 کنال زمین ہمیں روز کہتے تھے. میں کہتی ہوں ہماری آپ پی ایچ ڈی کر کے لے آئے نا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ 10 پی ایچ ڈی، رزاق داؤد کھڑا کہہ رہے ہیں، عمران خان کھڑا کہہ رہے ہیں. 20 کنال یہ کرکٹ گراؤنڈ نہیں بن سک رہی تھی. انہوں نے کہا یہ زمین جو ہے نا 2 کروڑ روپے ہمیں اس کے دیں. اور انہوں نے اتنی اچھی نیگوشیشن کی، 10 سال زمین نہیں دی. اب پھر بڑی مشکل سے جا کر پھر انہوں نے یہ زمین دی جس پہ یہ کرکٹ گراؤنڈ بنی. اس پہ بہت کٹ اینڈ فل ہوا ہے. اور عمران خان کا یہ بڑا پیشن تھا کہ بڑی کم دنیا کی گراؤنڈ ہوں گی جو بیٹھ جائے، بڑی کم دنیا کی گراؤنڈ ہوں گی جہاں پہ پہاڑ اور لیک کے درمیان ہے. بڑی کم دنیا، وہ تو بڑے شوق سے انہوں نے بنایا. ابھی پویلین بننا ہے، وہ ایک کچی سی جگہ نظر آ رہی ہے. یہ جو براؤن نہیں آپ کو جگہ زمین نظر آ رہی، یہ پانی جب چڑھتا ہے تو اوپر تک چلا جاتا ہے. یہ صرف کاشت کرتے ہیں. ہاں یہ یہاں تک جاتا ہے، وہ کھیت کاشت کر لیتے ہیں. ہماری نرسری بھی اب پانی کے ساتھ بہت بڑی نرسری اب بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ نے کہا اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ درخت چاہیے. آگے چلیں. ٹوٹل زمین کتنی ہے یونیورسٹی کی؟ 1000 ایکڑ ہے 500 ایکڑ کے لیے. اور ہم نے کیا یہ صرف پہاڑوں کے اندر ہی 1000. یہ دیکھ لیں حفیظ بھائی، یہ ہوٹل ہے. یہ آگے چلیں. یہ جو قالین ہے جب آپ آئیں گے وہاں پہ، یہ میں نے خریدے تھے، اس کی کٹنگ نہیں ہوئی تھی. یہ جیل سے ہیں، میاں والی کے جیل سے ہیں. یہ جیل سے میں نے لیے تھے، کسی کٹنگ کروانی ہے. لیکن یہ وہاں سے ان کی روزی آمدنی، میں نے اس لیے پروموشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کی بھی آمدنی ہو سکے. ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا یہ صوفے میں بتا دوں، یہ میں جانے سے پہلے کہ میں آگے جائیں، یہ میں نے کباڑیوں سے لیے تھے 100 درہم کے، جو 4-5 ہزار روپے ہوتے ہیں. ابو دبئی شارجہ سے. ہمارے وہاں پہ نمل کی ایک ممبر ہے، اور پھر انہوں نے شفٹ کر دیا. میں تو 50 صوفے ہم نے لے لی تھی. یہاں آ کے اس کو اپولسٹر کر لیا، نہیں تو ہم کہاں سے صوفے تھے شاندار رکھ سکتے تھے. اور لیکن یہ بستر پرانے نہیں ہیں، یہ نئے ہیں. جو کشنز ہیں، جو اوپر کشنز پڑے یہ وہی ہیں کباڑیوں سے. اور جو سامنے صوفہ بھی کباڑیوں سے. یہ جو تصویریں لگی یہ سارا کباڑیوں سے آیا ہے. یہ 15 درہم کی یہ ساری پینٹنگ ہم نے ساروں کو ریسٹور کیا.
और हमारा होटल बंद है। आपको मैं होटल आपका इतना अच्छा रिस्टोर करूंगी, आप देखिए। नहीं, आपको इसका $1000 पर नाइट चार्ज करें। हमने 5000 रुपये रखा हुआ है। तो लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये एक कोई दुबई के, ये एक कबाड़ियों की है, वो सिंधियों की है, वो माशाल्लाह पाकिस्तानी सब जगह जिंदाबाद। उन्होंने ये जो तस्वीरें हैं, ये कोई मैं कोई 50 किसी होटल की निकली हुई है। जो सोफे हैं ये किसी होटल के हैं। बड़े बड़े शीशे भी हैं हमारे पास, वो अटलांटिस होटल से निकले थे। ये पीछे करो, हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो इसमें बिस्तर नए। ये जो आपको छोटे रग नजर आ जाए, ये भी डोनेटेड हैं। ये जो बेड कवर वगैरह है, ये जो मेरा ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, ये भी ये डोनेटेड है। जो एसी वगैरह ये हायर किए हैं सारे, खुल के टीवी सारा कुछ, जावेद अफरीदी सारा कुछ भेज दो। तो हमारा यहाँ सिस्टम है पूरा कि हम इसको कैसे करते हैं। आप बैठ जाओ, हाँ मैं भी, हाँ अच्छा आगे चलते जाएं। और ये जो फर्नीचर है ये यूके के एक हमारे वो हैं, इसकी बिडिंग करवाने लगे थे। मैंने कहा मुझे तो इंटरवुड के चाहिए, तो इंटरवुड लेने के लिए वो रजाक दाऊ तो नहीं है, तो सिस्टम के मैंने डायरेक्ट वो डोनर जो हमारे हैं इमरान मैनचेस्टर में, मैं कहा इमरान मैंने लेना है इंटरवुड का सारा कुछ, ज़रा भेजो उनको डायरेक्ट बिल डायरेक्ट पेमेंट उसकी हो गई इंटरवुड की। तो रजाक ने कहा इसकी, मैंने कहा हमने इंटरवुड सेलेक्ट किया और डोनर ने दे, उसने कोई 1.5 लाख का। आगे चलो, ये जो फैकल्टी है उनकी जो अकोमोडेशन बनाई गई है, चलते जाओ नहीं सिर्फ यहाँ रुकना। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बच्चे ये कहाँ से आ रहे हैं। एक एक बच्चे का आपको पता चलेगा कि ऊपर से लेके कराची तक, और ये थरपाकर बलूचिस्तान, और ये चुने नहीं गए, ये बच्चे ये जो बस एडमिशन हो गई सारे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता है, मुझे नहीं पता था, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारे पाकिस्तान से बच्चे आ सकते हैं। अगर आप लम्स पढ़ने जाएंगे या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, पैसे होंगे तो जाएंगे ना, आपके पास 20-25 लाख रुपए साल के होने चाहिए। हाँ, और ये बच्चे इसलिए वो जो 20-25 लाख वाले हैं वो शहरों से जाते हैं, वो देहात से जाते ही नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं उनके पास 20 लाख नहीं है किसी को देने के लिए। और ये देखें पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, और ये 85%, 85% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और थरपाकर से 85% लेकर आए। आगे चले, यही इसके अंदर बताया हुआ 100% मेरिट के ऊपर है, 97% स्कॉलरशिप में है, 90% तो इमीडिएटली मतलब इनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और 37% फीमेल फैकल्टी वो स्टूडेंट्स हैं। आगे चलते जाओ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बनने जा रहे हैं वो एग्री बिजनेस स्कूल है, जो पाकिस्तान का फोकस देहात के ऊपर है और मैथ्स का। ये आगे चलें, आगे चलते जाओ। ये आपके 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। ये ये मिट्टी के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और ये ठंडी रहते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ बड़ी अच्छी गुजरती हैं उसके अंदर। ये भी एक्सपेरिमेंट था। ये ईंटें इस्तेमाल होती हैं बंकर बनाने में, वो फौजियों के लिए बनती हैं। ये हमने वो लगाई हैं। ये सारी दीवारें देख लें, उसकी बनी है। आगे चलते जाओ, आगे नहीं कर रहे, पीछे जा रहे। हाँ, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे ये बड़े अच्छे स्टैंडर्ड का ये बना हुआ है। ये किसी ने एक दिन कहा फर्नीचर आपको डोनेट करते हैं, मैंने कहा स्कूल को डोनेट करो, ये यूनिवर्सिटी हमारी बड़े स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, इससे मैं वो चैरिटी का लफ्ज़ निकाल रही हूँ उसमें से। ये यूनिवर्सिटी बन रही है, मतलब नॉलेज सिटी है, ऑक्सफोर्ड बनने जा रहे हैं। चलें, चलते जाओ। ये आपको सिर्फ थोड़ी सी तस्वीरें हैं कि आपको पता चल जाए कि हवावे ने लैब सेटअप की है पीछे, और इन्होंने कहा हुआ है कि जो उनके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो बेजिंग लेकर जाएंगे मास्टर्स की स्कॉलरशिप पे। आगे चलें, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं। आगे जो बनने जा रहे हैं मेडिकल स्कूल। अपने फ़ोन ज़रा बंद कर दें 2 मिनट गैदरिंग के। अच्छा,
ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, वन हेल्थ मेडिकल, अभी 10 मिलियन पाउंड का डोनेशन एक हॉस्पिटल बना रहे हैं 200 बेड का नंबल के साथ, उसके डिज़ाइन बने रहे हैं। जब वो शुरू हो जाएगा तो इसके साथ ही जो वन हेल्थ सिस्टम है मेडिसिन का, ये शुरू हो जाएगा नंबल में, कॉलेज तक शुरू होगा। कंजर्वेशन, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मेजर फोकस है। आपको मैं कल कह रही थी ना, क्योंकि सब रिलेटेड हैं और हम बैठे हुए हैं ऐसी जगह के ऊपर कि हमने इसको कंजर्व करना है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जियोलॉजिस्ट आपने बताया नहीं था, आपको भी पता है, हम उसके ऊपर बैठे हैं। जो आप बात कर रहे थे उसके टॉप के ऊपर बैठे हैं। ये जियोलॉजिकल गोल्ड माइन है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर, आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, ये बनेगा कैसे सारा कुछ? मैंने बनाना है, मेरी तो उतनी समझ नहीं है, तो कौन बनाएगा? नहीं 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 नहीं, आप नहीं बनाओगे। सीधी सीधी बात करें, टाइम, वक्त, पैसे बहुत आसान है देने। मेरी तरह मैं ये भी नहीं कह रही अब मैं आप शेखी से बताने लगी, मेरी तरह ये भी नहीं कह रही अपनी ज़िंदगी कमिट करते हैं नॉलेज सिटी बनाने में, लेकिन अपना वक्त आप दे सकते हैं। ये बनेगा नॉलेज के साथ, ये नॉलेज सिटी है। ये जो हम आपने चीज़ें देख रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा फोकस ही रिसर्च पे, सारी दुनिया से हम अपने सारे रिसर्चर्स वापस लेकर आएंगे। आप चाह रहे हैं ना पूरी नेशन के लिए, ये नेशन का इमरान का फोकस है। जब तक ये नहीं होगा एक नेशन नहीं बिल्ड होती उनके नज़र में। साइबर सिक्योरिटी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग, ये जो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जो दुनिया में जो डिमांड है, हम फ्यूचर पे जा रहे हैं ऑलरेडी। आगे चलें, अच्छा ऊपर देख लें क्या लिखा, पीछे करें, निसार अजीज एग्री टेक्नोलॉजी सेंटर। हम सेंटर्स तो सेटअप कर ये शुरू हो चुके हैं। ये इसका सारा फोकस पाकिस्तान के सॉल्यूशंस है और टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये किसका ये हम करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर किसको समझ आई? सबका अपना अपना मेन्यू कार्ड है, अपनी अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर एक है अशर अजीज, वो मायमी में बेस्ड है। किसने सुना ना? किसने सुना? आपने सुना ना? उनकी कंपनी है फायर आई। सुनिए कभी किसी ने सुना फायर आई का? साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और इनका पैशन है ये। निसार अजीज उनकी वालदा का नाम है और ये इतना पैशनेट है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में। ये इजराइल पहुंच गए उनका देखने के लिए। और तो इससे जब इतने जीनियसेस स्मार्ट माइंड्स बैठे हो, खुद ही चलाएंगे। और उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा के ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें और इनको गाइड कर रहे हैं। आगे चले, आपको इससे दिखा रही हूँ, ये वो निसार अजीज एग्री टेक्नोलॉजी सेंटर। चलते जाओ, ये चलते जा। बिग डाटा का ये सारा एक आधा फ्लोर है इनके पास। और आप मेरे से पूछें बिग डाटा क्या है, कुछ नहीं पता, बस नाम आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं पता। चलते जाएं, मतलब जगह बहुत खूबसूरत है। और बच्चों के पास ये इमरान खान चाहते थे कि आउटडोर एक्टिविटी हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। चलते जाएं, चलते जाएं, क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी है। और हाँ, ये बड़ा क्रिटिकल है जो बच्चों को करवाया जा रहा है कि आप अपनी सब्जियां उगाओ और फिर खा लो। चलते जाएं। शाम को ये ट्यूशन सेंटर है, पूरी कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, 5 बजे से 8 बजे तक यही क्लासरूम ट्यूशन सेंटर बन जाते हैं। और ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। फ्लड्स में भी इन्होंने काम किया, क्योंकि हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में अफेक्ट हुए थे। तो बाकी हमारे स्टूडेंट्स, आगे चलते जाए, इन्होंने कैंप्स लगाए, इन्होंने काफ़ी काम किया था जाके। चलते जाए। हाँ, ये जो आखिरी हमारी कॉन्वोकेशन है जिसके अंदर वो मुबारक अल नयान और जावेद अनवर भी बैठे हुए हैं। आगे चलते जाए। और ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं ना, जो जिसके लिए हम इस वक्त गैदरिंग भी कर रहे हैं, अब तो अल्लाह का नाम लेकर निकल जाते हैं। ये जो
हमारी अगला जो हिस्सा बनता है ना, जिसको कहते हैं जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो सारी स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर हो चुकी हैं। वो आए हैं लोग, उन्होंने थोड़े से लोग हैं, उन्होंने स्पॉन्सर कर दी। लेकिन जिसके लिए हमें ज़रूरत है इंसानों की, 20 लोग आएंगे, बिल्डिंगें बना देंगे, तो एक नॉलेज सिटी आबाद कैसे होगी? हमें चाहिए नॉलेज साथ। नॉलेज के बगैर नॉलेज सिटी नहीं बनेगी। जब आप लोग कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान आएंगे और एक सिस्टम ऐसा लाएंगे और वो कमाल का सिस्टम होगा, तो चलाएगा कौन? फिर हम आते हैं, फिर पाकिस्तान आके कहते हैं ओ यहाँ तो काम नहीं किसी को करना आता। ये ज्यादती है। पाकिस्तानी आपने कभी सोचा है कि बंद हुए हुए हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना नॉलेज के साथ पास एक्सेस है? तो आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप बाहर हैं, उनको तो नहीं अपॉर्चुनिटी मिली है। हम वो नॉलेज वापस लाएंगे तो उनको देंगे ना। हमें वापस लेकर आनी है। जब एक प्रोफेसर जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये होता है, डॉक्टर्स आए हैं कई, उनको कहते हैं जी हमें पहला इनकी मिशन होती, मैंने कहा देखे ये भी ज्यादती है। आप बताएं कि एक डॉक्टर वहाँ काम कर रहा है, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, आप इतना बड़ा चट्ठा उठा के ले आते हैं, कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी पे आपका एक्सपोजर है, और फिर वो उसके 2 बच्चे स्कूल में और 2 बच्चे कॉलेज में, उसको तो वो तो पाकिस्तानी है, जंगजू है, उसने तो आपको भगाना नहीं, तो और क्या करना है? क्यों ना भगाए? तो अकेले जाएंगे, इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाएंगे? आप अगर जाके कहेंगे मैं नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो सब ठीक हो जाएंगे। जब वो थ्रेटन्ड होंगे अपनी नौकरी के लिए, इस मुल्क में भी लोग फिर जंग लड़ते हैं। तो ये जो नॉलेज सिटी है, ये मेरी तो नहीं है, मुझे तो इतना सा बस पता है जितना मैंने यहाँ तक फैसिलिटेट कर रही हूँ। लेकिन आप जिनके पास नॉलेज है, इतना सा टाइम भी दे देंगे ना, वो भी सदका जारिया बहुत बड़ा है। आप नॉलेज लेकर आए। सबसे बड़ी फैशनेबल चीज़, हम नॉलेज को फैशनेबल करें, इसलिए आप लोगों को जमा किया है। तो जिसको अब ये हॉस्पिटैलिटी के लिए अनवर रहमान ने किसने दिया था बताओ? आतिफ को पता है? क्या है उसके होटल? वो पाकिस्तान में होटल बना रहे हैं। कहते हैं मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे? तो मैंने कहा तुम यहाँ अमेरिका से बेस्ट स्कूल लेकर आओ, पैसे भी भरो और स्कूल भी लेकर आओ। तो वो उसने $3 मिलियन कमिट कर दिया। तो स्कूल जितने स्कूल लाना चाहते हैं लेकर आए। पाकिस्तान को तो आप सोचें बच्चों को और क्या चाहिए अगर आप उनको एक्सेस दे दें टॉप नॉलेज की। सो नॉलेज सिटी आगे चले। लेकिन हर चीज़ की एक बिगिनिंग है। मैं आपको बताती हूँ दूसरा क्या चीज़, आगे चलते जाए। हाँ, स्कॉलरशिप क्लब के हर चीज़ की एक छोटी सी बिगिनिंग होती है। आपको छोटी लग रही है ना, जिसके लिए मैं सारी दुनिया में फिरने को तैयार हूँ। आप सोच रहे हैं वो छोटी चीज़ है। आगे चले। आपने जगह ही बहुत खरीद ली है जी। हाँ? तो 1000 एकड़ 1000 एकड़ नहीं, बनते हैं। एक पूरे गांव की इतनी जमीन नहीं होती। 500 बड़े गांव की देखो होती। पहाड़ है ना इसमें, आधे तो कंजर्वेशन में चले जाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ दरख्त उगा रहे हैं। अब 500 एकड़ और ले रहे हैं क्योंकि इसके साथ जाएंगे बिजनेसेस, बिजनेस सेंटर भी बनना है। जैसे नहीं कारोबार आके वहाँ खोलेंगे, बच्चों को एम्प्लॉय करेंगे जैसे यहाँ पे करते हैं। तो हम 500 एकड़ और वो बंजर ज़मीन है जिसको हम ले रहे हैं, लेकिन 1500 एकड़ हो जाएगा। लेकिन इसकी जो बिगिनिंग्स है ना, वो ये क्लब है। छोटा सा चीज़ है। हमने नॉलेज को फैशनेबल बनाना है। इसलिए मैं बाहर निकली हूँ फैशनेबल लोग ढूंढने के लिए, नॉलेज को फैशनेबल बनाने के लिए। क्या समझ आए? नॉलेज कैसे फैशनेबल बनेगा? इस मुल्क में आप बताएं कि सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल क्या है? इस मुल्क से सीखें। आप यहाँ कौन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पढ़ा है? यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में गए, बिल्डिंगों पे नाम देखें लगे हुए, ज़्यादातर यहूदियों के हैं। हाँ, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? नॉलेज। इस वक्त इजराइल हाईएस्ट रिसर्च निकल रही है इजराइल से। कैसे?
इतना सा मुल्क है, उसके तो 4 फुट की जगह नहीं है उनके पास। इकॉनमी सारी दुनिया से यहूदियों को लाते हैं, अपने बच्चों को वापस लेकर आते हैं, उनको इंटर्नशिप्स कराते हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों में उनको प्लेस करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, अपने मुल्क से बच्चों को भी कनेक्टेड रख रहे हैं और नॉलेज भी वापस हमारे। आपको पता है दुनिया की, मेरे से मैं शर्त तो नहीं लगा रही, मैं गारंटी आपको दे रही हूँ, दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एक मुझे दिखा दें जिसके अंदर पाकिस्तानी नहीं पढ़ा रहा। एक मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि दुनिया की मैं आपको खुद बता रही हूँ। आप सोच सकते हैं नॉर्वे के अंदर मैं गई हूँ, स्टेवेंगर, वहाँ ऑयल की वो जो जियोलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया वहाँ जियोलॉजिस्ट PhD, उन्होंने मुझे तो जो बुलाता है मैं चली जाती हूँ। ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, ऑफशोर रिग और स्टेवेंगर, मुझे क्या मैं तो नक्शा पे ढूंढना पड़ा ये जगह कहाँ है। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा यहाँ कौन, उन्होंने कहा जी आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। छोटा सा जहाज लेकर पहुँच गई वहाँ, 300 पाकिस्तानी फैमिलीज, 8 PhDs स्टेवेंगर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, 8 PhD और जियोलॉजिस्ट है। आप बताएं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें ये डिपार्टमेंट खोल दें, हमें यहाँ जियोलॉजी की डिपार्टमेंट खोल दें आपकी नम्बल के। इन्होंने कहा वहाँ पे गॉज जो है, अगर हम 50 साल इसको स्टडी करते रहे ना उस डिपार्टमेंट में तो वो कम है। और वो गॉज मुझे बाद में पता चला वो नम्बल की ज़मीन है, वो नम्बल के अंदर है। तो आपको याद है कि जब आपको दिखाई थी वो जो गॉज पीछे थी, तब जियोलॉजिस्ट भी आए हुए थे और पीछे क्रशर बंद करवा रही थी मैं। वो जो गॉज है ना, उसको क्रशर, वो अल्लाह ताला ने उसको कई मिलियन साल लगाए बनाने में। आप फिक्र ना करें जिस स्पीड से हम उसको खाने लगे हुए थे, क्रशर पे क्रशर इलीगल लगा हुआ। फिर हमारी जो कमिश्नर थी वो खातून थी, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा ये आके देखो यहाँ फॉसिल्स निकल रहे हैं, यहाँ अगर जियोलॉजिस्ट देख लें तो वो रो रो के सर मारेंगे ज़मीन पे, तो क्रशर बंद कराओ। उन्होंने कहा जी आप यहाँ नम्बल से निकलती हैं, आपको माफिया ये मार देगी। बजरी बनाते हैं उससे। हाँ, कितनी मुश्किल से वहाँ ना उसको- रीसेंट से लेके ये प्री कैम्ब्रियन तक geologist रॉक्स है। हैं। हाँ रीसेंट से लेके ना हाँ प्री कैम्ब्रियन तक, लाइक 6 बिलियन ईयर तक की एज की रॉक्स। वो मुझे वो बताए थे कि वो दुनिया पूरा में उसका 3 status- location स्ट्रक्चर है। ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो नगर वो कहते हैं वो जमीन से पूरा कुछ निकले कर। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये नॉलेज, ये आप खुद सुन लें क्योंकि ये भी अकीब भाई भी जियोलॉजिस्ट हैं तो इनको पता है। तो इसके लिए जो हमने क्लब बनाया है, ये हम बना रहे हैं $50 बिलियन नेटवर्थ का क्लब बनेगा ये। इसके अंदर इसके मेंबरशिप हो रही है ना, एक इसका जो टॉप है ना हेड, उसको हम जोड़ रहे हैं पाकिस्तानी जिनकी $50 बिलियन की नेटवर्थ होगी, ताकि सारी दुनिया को पता चले हम भी किसी खाते में हैं। तो ये 100 क्यों नहीं करते? पहले 50 तो कर लेना 50 को तो चीज करें, आप साथ लगेंगे सारे। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद समझ लें। हमारी जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, अपनी एस्टीम को उठाना है। आप हर कोने में छुपे बैठे हैं, हमें तो पता है ये सारे, ये मैं कोई अनहोनी चीज़ नहीं कर रही हूँ। ये सारे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, इमरान खान के पास आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने आए हैं, ये सारे आए हुए थे, एक के बाद दूसरा आ रहा है। आतिफ को पता है, आतिफ बताएंगे कितने लोग आए। आतिफ सारे दोस्त आए हैं, इमरान खान के पास आए हैं, वो पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। जब आपको याद है जब जावेद अनवर आए थे, ये जब स्पीकर भी आए थे, इमरान ने कहा जावेद भाई आओ अब पाकिस्तान में आके ड्रिलिंग करो, हॉरिजॉन्टल ड्रिल। हाँ कहा था ना। तो जावेद अनवर ने कहा मेरे जो अमेरिकन है ना वो घबराएंगे आते हुए यहाँ पे, ठीक है। जो 7 मुबारक अल नयान जो अबू धाबी के हैं, अल नयान, वो आगे से कहते हैं नो नो नो, आई हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग, अब ये गौर से सुने, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल मैन एंड इंजीनियर्स
in ADNOC are Pakistanis. Javed Anwar, you give me your number, I'll give you the engineers from ADNOC which are the best. पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं आप फ़ख्र करेंगे कि they are always the best. तो हमें फ़ख्र करना चाहिए. मैं कहा जावेद भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप अमरीकनों की बातें कर रहे हैं, अरबी को आपको बताना पड़ रहा है कि मैं आपको इंजीनियर दे दूंगा, क्या हो गया? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही पोटेंशियल पाकिस्तान का. ये सब लोग वापस आएंगे लेकिन इनका बेस कोई नहीं है, घर कोई नहीं है. अगर हमने एक क्लब बनाना होता हम कैसे बनाते, कहाँ से देख रहे हैं. हाँ, लेकिन ये नमल इमरान खान का ख्वाब है ना. तो हमने बड़ा सोचा कि हम ये जो सारे लोग आ रहे हैं इसको एक जगह पे एक क्लब बनाते हैं. तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और जो नमल आए हैं, आपने भी देखा है जब आप आते हैं, फ़र्क दुनिया से हमने बुलाया. थोड़ी देर बाद देखें कि वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क बन गया. अभी पिछले 2 मिनट में जाके होटल कोई बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग हो रही. उससे फिर ख्याल आया कि अगर, और एक दिन मैंने जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ये जो बिल्डिंग्स डोनेट कर रहे हैं, मैंने उन दिन हिसाब लगाया. मैं कहा 18-19 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी एक ग्रुप में हमारे पास है. मैंने सारों के हिसाब लगा के देखो बता रही. अब मैं पैसे गिनती हूँ सबके. मैंने कहा मॉनिटर करना है इनका, कहीं जैसे इलॉन मस्क की तरह रेट ना वो नीचे ना चला जाए. 18 बिलियन डॉलर का तो हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप, एक ग्रुप में ही है. इंग्लैंड से, वो वहाँ से क्या कहते हैं, जापान वाले भी हैं. तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस क्लब का आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी बाहर जो कम्युनिटी और सक्सेसफुल हैं, इनको मौका मिले कि आप लोग आपस में नेटवर्क कर सकें बाकी मुल्कों के साथ. जो ऑलरेडी कर रहे हैं, थोड़े लोग कर रहे हैं, तो हम इस क्लब को एक्सपेंड कर रहे हैं. इसके अंदर दुबई वालों ने कहा कि हमें कॉन्शियस सर्विस चाहिए. मैंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो भी हो रहा है. हमें फ़ोन आते हैं कि घर हमारा कब्ज़ा हो गया. मैंने कहा किसी का फ़ोन है, उन्होंने कहा घर कब्ज़ा हो गया. मैंने कहा किसने कब्ज़ा किया? कहते हैं असल में वो घर, ये स्टैंडर्ड कहानी है, आपको कहीं को पता होगी. खाला के बेटे को कहा था वहाँ थोड़ी देर रह ले, वो छोड़ता ही नहीं. सही है, स्टैंडर्ड है ना. अब हमें भी पता है. मैंने कहा अब खाला का बेटा तुम्हारा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर वहाँ लोकल हमने एक बंदा ढूंढा, लॉयर. ये भी अक्लमंद है ना. उसको कहा इसको फ़ोन करके कहो मैं महीने के अंदर ये घर रेंट कर रहा हूँ, तो आप कब खाली कर रहे हैं? 2 महीने में घर खाली हो गया. हम तो उसकी भी एक्सपर्टीज़ है अब हमारी. मैंने कहा आइंदा अगर चाचे के बेटे मामे के बेटे को बैठाना है ना, या ना आना. मतलब कब्जा तो नहीं हुआ ना. आप कहती उसकी फैमिली ने उससे कहा मैंने अपना वो लिहाज भी रखना है. एक दूसरा जो इशू जो था, होटल के डिस्काउंट्स, वो ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं. किसी के एक मेंबर है जो बिल्डिंग डोनेट कर रहा है, उसने कहा मुझे होटल का डिस्काउंट चाहिए, मैं 70 लोगों के लिए बुकिंग करनी, वो भी हम कर रहे होते हैं. गाड़ियाँ भी बुक हो रही होती हैं. तो कॉन्शियस सर्विस तो क्लब की हो गई पाकिस्तान आने की. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग दोनों के दरमियान, ये बड़ा ज़रूरी है. अगला अब जो बनने जा रहे हैं ना, वो श्रीनगर के हमारे आर्किटेक्ट हैं. श्रीनगर का है, पाकिस्तान है ना. क्यों हमारा पाकिस्तान है. हाँ, तो श्रीनगर के वो आर्किटेक्ट हैं. इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि देखें श्रीनगर के पाकिस्तान में, और वो कमिटेड है. वो अभी मेरे साथ साउथ अफ्रीका भी गए हुए थे. वो तो अभी दुबई में, उनका काफ़ी बड़ा कोई प्रोजेक्ट है दुबई में. वो इसकी जो बनने जा रहे हैं ना, हम इतने कॉन्फिडेंट इसलिए कि जो टोनी शाह ने बैठ के बनाया है कोविड के दौरान. हर 5 हफ्ते के बाद ये पाकिस्तान आते थे. अब इनसे पूछें कितनी दफ़ा आए हैं और आप वहाँ पे, अब और हमारे साथ नहीं गए थे उधर.
सैन फ्रांसिस्को भी गए Yes, और कहाँ yeah. गए थे हम सारी Houston, जगह रोड Dallas, अब वो Dallas. आर्किटेक्ट है उसको साथ हमारे साथ Yeah. जाने की तो जरूरत नहीं थी कैंसस कैंसस साथ उठ के गए और वो कहते हैं अच्छा कहीं जाना मैं साथ चला जाऊंगा और वो जितनी कमिटमेंट वो लगता है कि प्रोजेक्ट उनका है जितनी वो और है ही उनका अगर जितनी डिटेल में अगर मुझे कभी सिफारिश आई है तो टोनी शाह की मीटिंग के लिए है उसने कहा मैं 15 स्कॉलरशिप दे दूंगा जी दुबई में अगर आप इनसे मीटिंग करें मैं कहा टोनी मीटिंग करो हम तो इस वक्त स्कॉलरशिप इस तरह भी जमा कर रहे हैं आगे चलें अब टोनी ने जो जब ये कोविड हाँ अच्छा ये नहीं इमरान की वीडियो दिखाओ वो जो छोटी सी है इमरान का जो मैसेज है आप सिर्फ ये देख लो 2008 में इमरान खान ने क्या कहा था और मेरा दिल है कि आप लोग क्योंकि ये एनुअल है ना क्योंकि एक बच्चे को आप सपोर्ट करते हो तो क्लब के मेंबर बन जाओ ये बुरा आइडिया तो नहीं है ना आपकी ज़कात और खैरात स्कॉलरशिप पे लगती है लेकिन हम इसको जो पहले मैंने कहा था मेंबरशिप क्लब की है ज्वाइनिंग मेंबर एनुअल मेंबरशिप फीस 4 साल के लिए कोई सपोर्ट करेगा एक बच्चे को आपको स्टूडेंट का नाम आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप जो स्कॉलरशिप देंगे वो आपके नाम से जाएगा आप अपना नाम दे सकते हैं आप अपने किसी फैमिली मेंबर लेकिन नाम आपका होगा और अटैच एक बच्चे से होगा ये जो नाम की स्कॉलरशिप है हर स्कॉलरशिप पे नाम चाहिए किसी ने एक दिन दुबई में 50 स्कॉलरशिप दे दी उनके साथ पूरी मैंने कहा कि आप कर ही नहीं सकते जब तक आप मुझे 50 लोग नहीं देंगे मैंने कहा अच्छा सारों पे मेरा नाम लिख दो मैंने कर लेंगे जब मकसद इसका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इंसान जमा करने आई हूँ इसलिए बेहतर होता है कि अगर एक स्कॉलरशिप हो जाए और सस्टेनेबल है तो कोई 4 First, welcome everybody to giving us your precious time for our knowledge city. हमारा जो ज़िंदगी है हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते हैं so considering that a fact जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है कुरान पाक में वो है रब अल्लाह उसके बाद जो टॉप 10 लिस्ट में नाम आते हैं उनमें इल्म है एक जो सबसे ज़्यादा मेंशन होता है कुरान पाक में और इल्म जो है वो हमारे दीन में मैंडेटरी है और कुरान पाक कहता है सुन्नत कहती है कि जहाँ भी जाए जाकर इल्म हासिल करे तो ये नंबर नॉलेज सिटी है नंबर इल्म सिटी है इसकी जो बेस है वो कुरान जो हमारा दीन का काज है उसको आगे लेकर जा रही है ये एक तो है हमारा पाकिस्तान काज एक है हमारा जो हमारी एक बेस है लेकिन एक जो हमारा दीन का रूट्स है वो भी यही सिखाता है कि आप इल्म के ऊपर इन्वेस्ट करें और यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त ये सारी फैमिलीज हैं हमारी सभी घर वाले हैं तो हमने इस इल्म को आगे लेकर जाना है $3,500 है जो कि बच्चे की पूरी साल की एजुकेशन को सपोर्ट करेगा और जो बच्चे जो आपने साथ लेकर जाना है हमें जो भी आप जिसको आपके साथ एफिलिएशन करना चाहते हैं वो आपके इलाके का भी हो सकता है वो एक एकेडमिक कोर्स से भी हो सकता है वो जैसा आप चाहेंगे वो आपके साथ लिंक हो सकता है उसकी डेली ईयरली परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर होगी अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल भाभी नूर और एहसन भाई सबर भाई और अंकल और आंटी आपका शुक्रिया जिन्होंने एक बहुत अच्छा वेलकम किया है हलीमा बाजी को और आप लोगों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए जब मैंने सबर भाई से बात की तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा अच्छा काज है वो बहुत बिजी रहते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में उनकी ये बड़ी काविश है कि फैमिली को इकट्ठा किया है हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए सिर्फ लिमिटेड जो दोस्त हैं उनको ही बुलाया है तो इंशाल्लाह आप आज देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है वो हमारे यहाँ से होगा तो $3,500 कुछ भी नहीं है $3,500 के तो यहाँ पे 2 दफ़ा जाए तो खाना खा के आ जाते हैं तो इंशाल्लाह एक स्कॉलरशिप मेंशन से भी है और बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे
اور جتنی فیملیز بھی آئی ہیں ان سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی کنٹریبیوشن کریں. $3,500 اگر تو آپ چیک لکھ سکتے ہیں دیٹس فائن, یو کین رائٹ اٹ ٹو فرینڈز آف نمل, اور we have other ways. I also have a credit card machine that I take along with me or send it to places wherever we are doing it. You can charge it. And then the third thing, and we really want all of you to do is, آپ نے جو فارم دیکھا ہے اس پہ ہوگی بھی انفارمیشن, ہماری جو ویب سائٹ ہے friendsofnamalusa.com, پلیز گو ٹو دیٹ سائٹ, آپ اس پہ جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بتائیں کہ نمل, فرینڈز آف نمل USA جو ہے یہ یہاں پہ وی آر نان پروفٹ 501c3, تو جو بھی آپ یہاں پہ ڈونیشن دیں گے اٹ از ٹیکس ڈیڈکٹیبل ٹو یو. تو پلیز میک شیور کہ یہ اور اٹس اے registered IRS corporation. All for coming here tonight on such short notice, and especially Ali Mafi, Sajjad Bhai, and Atif Bhai, who especially traveled from Texas. So myself and my whole family is so proud of you. There's a reason for that, and we believe that Allah Subhanahu wa Taala has chosen you and Imran Khan as a medium to help less privileged and less fortunate than ourselves. And you're doing a tremendous job. Trust me, it looks very simple and easy. You travel around the world collecting money, but it's not. It's really not. And I believe Allah Ta'ala, jo bhi aap log donate kar rahe hain, inshallah Allah Ta'ala, uska definitely aap log ajr dega. Or on behalf of my whole family, we are pledging about 4 scholarships. One for myself, and one for Ali Bhai, one for Sajjad Bhai, one from my rest of the family. So we are paired up. So we are pledging. Don't forget to like, comment and subscribe.